हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है? ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर जो सा हमारा ओरिएंटेशन डे था उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और कौन कौन से एब्सेंट थे उस दिन? मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को रोड मैप जो सा है वो एक दिखाया था, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग थ्रू आउट द इंटर्नशिप जो सा है वो चलेंगे। ठीक है। और आई थिंक मैंने यूट्यूब का एक लिंक भी शेयर किया था आपके साथ ओरिएंटेशन का जो लास्ट टाइम था। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है। और बाकी ये है कि जी जी, आपका क्वेश्चन है, आप पूछें। अच्छा, आप लोगों से अच्छा, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ मैं। सिंपली क्वेश्चंस हैं रिलेटेड सिंपल। मैं आपको पहले थोड़ा सा रोड मैप का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाउ वी ग्रो मूविंग थ्रू दैट इंटर्नशिप फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू, यू जस्ट सी ऑन दैट। जस्ट अ मिनट। दिस इज़ आवर रोड मैप ऑफ 2.5 months of internship. So in that we have like सब स्टूडेंट्स को कुछ पता होगा कि मान स्टैक जो सा है वो क्या चीज़ होती है। Basically, if anyone says to you which developer you are, you can say you are a full stack developer. Okay, then in full stack we have front end and back end both included. Okay, then anyone asks you about in which stack did you work, you can say I worked in the mun stack. So that is called a stack of stacks in the full stack. Okay, like mun, like mean. Okay, MUN stands for M for MongoDB, E for Express, R for React, N for Node. MongoDB is our database. In the place of MongoDB, we use the SQL. Express we use in the backend. React is a framework of the front end, and Node.js is the framework of backend. And we have program objective for this program is designed to take students for fundamentals to production level full stack development. Okay, so this is your roadmap follows an industry aligned learning path, emphasizes weekly practical task with 4 weeks real time individual full stack projects development using MERN plus PostgreSQL. I also told you this is database we using in that with proper MVC architecture. MVC means model views and controllers. Model controllers are on the back end and views are on the front end, that is showing to the user. Okay, basically models are on the back end. Models just define the structure of our, like you can say, working. Okay, we have any module, like we have a user module,
If any user want to register, here we have the important things for using registering the user are their name, first name, last name. As is it's an example like you want to register as a sign up as a Facebook new account. So the things required here, that is defined in our model on the backend. Okay. And the model controlled by the controllers. Okay. In controllers we make the APIs by using JavaScript. APIs means application programming interface. Okay. Then those are connected with the front end with the React Redux toolkit and shows their view on the front end. Okay. In their component in on their pages. So the next we have starting points, foundational path. We are starting from the programming fundamentals, C++ and OOP. This is our fully basic. This is our base. When our base is strong, we do better programming or better coding. Okay. HTML, CSS, Bootstrap, Tailwind, CSS, these all are the just used for the styling. Okay. If we have strong base, we did all the things very easily. Then we have UI frameworks, Bootstrap or Tailwind CSS. Front end libraries, we have front React.js or Next.js. React.js is the first. React.js comes first, then Next.js comes after the React.js. Next.js is the advanced form of React.js. Okay, there is not a bigger difference between both of them. There is just a minor difference between them. Okay. Then we have further, we have for the state management globally in our project, we have Redux toolkit. Okay, that is a part of React. This that is basically called a store. Okay, as I mentioned in the orientation as well, I just explains this Redux toolkit, why we use that and why we need it. This is totally communicate with the backend and fetch your data in the form of states and show in the in front end in the form of views. Okay. In backend development, we have Node.js, Express.js databases. We use PostgreSQL, and architecture we following MVC pattern. Okay, and model views and controllers. In all the things we have model views and controllers. So the next we have in the last 4 weeks we completing our real time individual project in the last 4 week of that internship. So first week we we make the breakdowns according to our internship program. We have in first week we complete these topics. Then introduction, we have some topics in that like C++ syntax and these things. To the next we have HTML and CSS web fundamentals. In these we covered these topics, and according to that we have task. Okay, that I give you in the form of requirements, like I ask you make these things. I send it in the form of requirements and you make that and send it on make and send it on Slack. Okay, I and then we have week 3 UI frameworks. We have Bootstrap, Tailwind, CSS. In the Bootstrap we have mainly the important thing is grid system. Anything divided on the page in the form of grid system. Okay, like Bootstrap is make for using for uh, enhance the styling more. Okay, in our project. And then we have JavaScript and React JS basics. JavaScript's ES6 version we using now. Okay, ES6 version is currently we using. We have DOM manipulation, that React JS introduction, JSX files, what is JS and what is the difference between JS, JSX. Okay, and we have components. In that it is component based framework. React JS is a component based framework that is introduced by the Facebook, and Facebook also make on the React. Okay, that is also called a single page application. Okay, it doesn't mean it doesn't mean it depend on the single page. It's the other pages are managed by the in the form of routing. Okay, in the form of routing or in the form of pages. Yes, any question? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे आपने वीक्स लिखे हुए हैं कि हमने इस वीक में ये करना है, इस वीक में ये करना है, तो क्या एक वीक कम नहीं होगा मतलब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस के लिए? इसमें जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये जस्ट एक रोड मैप है। ठीक है,
रोड मैप का मतलब ये होता है कि आप लोग, जब हम लोग इस चीज़ पे चलते हैं ना, चीज़ को लेके, तो इसका हरगिज़ मकसद नहीं होता कि हम लोग उस वीक के अंदर उस चीज़ को कंप्लीट करें। उसमें ये होता है कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट को, एक बिल्कुल बिगिनर लेवल स्टूडेंट भी है ना, वो इसको एक वीक अच्छे से कर लेना तो काफ़ी है। मींस के उसमें अगर हम जावा स्क्रिप्ट को सारा करने बैठें तो आपको मैं कह लूँगा महीना भी लग जाएगा, मैं 2 महीने भी दे दूँ वो भी कम है। ठीक है, क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट प्योरली यूज़ नहीं करनी। हमने, आप जब जावा स्क्रिप्ट लर्निंग करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये है कि वो जस्ट एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, आपकी सी प्लस प्लस और ऊप अगर क्लियर है ना तो आपकी जावा स्क्रिप्ट क्लियर है। ठीक है, सी प्लस प्लस और ऊप इज़ द बेस। सो बेस इज़ क्लियर तो जावा स्क्रिप्ट इज़ क्लियर। जावा स्क्रिप्ट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, दिस इज़ जस्ट अ स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट आपकी क्यों यूज़ होती है? ताकि आप सी प्लस प्लस और ऊप की अपनी जो सी है उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, उसके लूप्स को यूज़ करते हुए, हमारी जो सी होते हैं 4 पिलर्स हो गए, इनको यूज़ करते हुए हम जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट को यूज़ करें और हमारी कोडिंग एनहेंस हो और शॉर्ट हो जाए। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हमें डिफरेंट प्रोवाइड करता है, डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूज़ करते हुए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमें बार बार क्यूरीज ना चलानी पड़े ज़्यादा। हम प्योर सी प्लस प्लस में कोडिंग क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते, वो गेमिंग में होती है, सी शार्प सी हैश के अंदर कोडिंग गेम्स के अंदर होती है और वो उतनी ही टफ होती है। लाइक आपको पता होगा, आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अपने यूज़ किया होगा, लाइक क्या कहते हैं इसे, बबल सॉर्टिंग के फंक्शंस हो गए, सेंडिंग डिसेंडिंग के, सी प्लस प्लस के आपने परफॉर्म किए होंगे एज अ असाइनमेंट। तो आपने देखा होगा वो कितने कितने लॉन्ग फंक्शन होते हैं। उसको उसको वैसे ही अगर हम जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में उतने शॉर्ट हो जाता है। जब हम जावा स्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो जेएस और आसान हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये है कि हम प्योरली किसी चीज़ को भी वैसे यूज़ नहीं करते। हम लोग ये फ्रेमवर्क्स, ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क, ये चीज़ें क्यों आई हैं? इसीलिए आई हैं ताकि हम इनकी लाइब्रेरीज, इनकी डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके उनको और इन्हेंस करें और उनको और शॉर्टेबल करें। जी जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग जो जावास्क्रिप्ट में लूप्स यूज करते हैं हम्म। वो सी प्लस प्लस वाले लूप्स हैं? देखें, अब आपने आपकी जावास्क्रिप्ट कितनी क्लियर है आपकी, मुझे अब ये बताया पहले। मैंने जावास्क्रिप्ट के लूप्स यूज किए हुए हैं। मैंने इसमें हम्म। सबसे ज्यादा यूज किया था फॉर ईच। तो हम जैसे सी प्लस प्लस में फोर लूप यूज करते हैं, फोर वाइल और डू वाइल, लेकिन हम सी प्लस प्लस में फोर और वाइल लूप ज्यादा यूज करते हैं। तो इस लूप्स, तरह अब जो लूप्स, हमारे लूप्स हैं जी जी। वो जावास्क्रिप्ट में है वही है, बट काम वही करने हैं, बट ये है कि उनका सिंटेक्स डिफरेंट है। जस्ट सिंटैक्स डिफरेंट है। मैंने आपको आगे भी चीज़ बताई थी कि देखो, अगर मैं कोई चीज़, हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज हमारे पास सिर्फ सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, सी हैश है, रूबी ऑन रेल्स है, पाइथन है, ये प्योर लैंग्वेजेस है, और जावा है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जितनी भी लेकिन जब वो लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट करते हैं तो उसमें वो लिखा आता है कि इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसमें? और जो मैंने वीडियो जहां से देखकर मैंने जावास्क्रिप्ट की थी ना, तो उनमें वो बता रहे थे कि इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज फिर वही बात है कि अगर प्योर लैंग्वेज हो तो हमें ज़रूरत क्या है इसको यूज़ करने की? इसमें जस्ट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, ठीक इसमें जस्ट ठीक। फंक्शनैलिटीज होती है। अगर ये प्रोग्रामिंग, अगर एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग प्योर लैंग्वेज है तो हम इसको अकेली को यूज़ क्यों नहीं करते? हम लोग पिछली चीज़ों को छोड़ क्यों नहीं देते? हम्म। हम लोग अपनी ऊप के अंदर पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन, हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशन है, उसको हम छोड़ते क्यों नहीं है? हम लोग हम्म। क्यों कहते हैं कि सी प्लस प्लस इज़ मोर इम्पोर्टेंट और ऊप इज़ मोर हम्म। इम्पोर्टेंट? आपकी सी प्लस हम्म। प्लस और ऊप एक बेस है, आपके घर की बेस नहीं ठीक, आपका ऊपर से जावा स्क्रिप्ट जितनी मर्जी कर लो वो नहीं ठीक होगा काम। हम्म। ठीक है, जब एक बेस आप कह लो कि वो एक आपका स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक ठीक। आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करता। अब यहाँ इसका नुकसान क्या होता है? जब आप लोग कहते हैं कि हमें जावा स्क्रिप्ट आती है और हमने इस चीज़ पे इतना ये नहीं किया हुआ, ये चीज़ हो ख़राब क्या करती है? ख़राब ये करती है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि डाटा टाइप्स क्या होती है। कुछ होते हैं बच्चे होते हैं जिन्होंने सी प्लस प्लस और ऊप कवर नहीं की होती, अब वो डाटा टाइप्स के अंदर हम्म। वो ये तो नहीं कहेगा ना जाके इंटरव्यूअर को कि मैंने तो ये सी प्लस प्लस और ऊप पढ़ी नहीं हुई। हम्म। ठीक है, या उसमें पूछेगा इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं, या उसमें पूछेगा कि आपका ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग फंक्शन क्या होता है, या ऊप के अंदर आपसे हम्म। पूछेगा 4 पिलर्स क्या होते हैं। आप कहेंगे जी मुझे तो आगे मैंने किया हुआ लेकिन मुझे सी प्लस प्लस ऊप तो आती नहीं है, तो दिस इज़ नॉट हम्म। आंसर। तो ये जाके नुकसान होता है आगे। हम्म। ठीक है, फिर आपसे वो यस। फिर आपसे वो जावा स्क्रिप्ट की तरफ क्वेश्चन करता है कि जावा स्क्रिप्ट में जो फंक्शनैलिटीज़ और चीज़ें हैं, फिर जावा स्क्रिप्ट की तरफ आता है। जो आपने अपने जितना आपने अपने सीवी में जितना उसको आप लिखेंगे ना कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, जितनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे उतना आप खुद फंसेंगे।
जो आपको आता है जस्ट उतना हम्म उतना लिखना चाहिए बस सीवी के अंदर भी, ठीक है। स्टूडेंट्स की गलती यही करते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल्स और ये चीज़ें मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की देखी हैं, काफ़ी मतलब कि ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उसने लिखा हम्म लिखा बहुत कुछ होता है, लेकिन मसला ये होता है कि उसको उतना ही लिखें जितना हम्म आप डिफाइन कर सकते हैं। वो एक अच्छी चीज़ होती है, वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता हम्म है। जो चीज़ आपको नहीं आती उसको छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, उसको अपने हैंड और एक्सपीरियंस लेके आए ताकि उसको सीखें आप लोग, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है, हम हमारे पास 2.5 या 2.5 के भी अगर 3 मंथ्स भी हम लोग करते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो मेनली चीज़ ये है कि हम्म आप लोग सब कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हम्म ये आप पे डिपेंड करता है। देखो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, आप अपने हर चीज़ को टाइम देते हो ना, ये आपका एक प्रोफेशनल लाइफ स्किल, हम्म ये स्किल्स है आपका, ठीक है। तो हम यूनिवर्सिटीज़ को भी टाइम देते हैं, हम अपनी हर चीज़ को टाइम देते हैं। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए दिन में 3 घंटे नहीं निकाल लें तो कुछ होगा तो नहीं ना, ठीक है। तो हम्म दिन में आप सब लोग अगर 7 आवर्स नहीं दे रहे, इसका ये मतलब नहीं आप कोडिंग नहीं सीख सकते। अगर दिन में आप 3 घंटे भी देते हो ना और समझ के देते हो चीज़ को, तो आप उसको अच्छे से अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक। मेन चीज़ यस। ये है, इस चीज़ को आपने ऐसे समझना है। अभी ये तो ठीक। एक हमने रोड मैप बनाया ताकि आपको इजीनेस हो कि हमने ये चीज़ें इस तरह कवर करनी है, मींस के कुछ आपको जगह पे पता हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम किस ट्रैक से चलना शुरू हुए हैं। ये ना हो कि आपको हम्म पता ही ना हो हम चले कहाँ पे थे, एंड कहाँ पे किया, ठीक है। ठीक है। बाद में यस। इश्यूज ये होते हैं कि जब आप चलते हैं और एंड करते हैं तो बाद में आपको यही नहीं पता होता कि एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप या एट द एंड ऑफ लर्निंग के हम लोग स्पेशलाइजेशन किस में की है हम लोगों ने। आपको इस चीज़ का नहीं हम्म पता होता कि हमने किया क्या ठीक। और हमें कौन से टॉपिक कवर करवाए गए हैं, ठीक है। ये एक रोड मैप है। रोड मैप का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप लोगों ने उस चीज़ को उसी वीक में कवर करना है। 1 2 दिन, तीन हम्म दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। हम्म रोड मैप्स बनाए इसलिए जाते हैं, देखो हम लोग एक चीज़ का एस्टिमेशन निकालते हैं, कोई एक हमने बिल्डिंग, एक गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, हम्म पहले वो एस्टिमेशन देते हैं कि जी आपका ये प्रोजेक्ट ए होगा 4 महीनों में ख़त्म, लेकिन वो 4 महीनों में ख़त्म नहीं होता, वो होता है 6 महीनों में ख़त्म या 5 महीनों में हम्म ख़त्म। तो वो एक रोड मैप होता है, वो प्रॉपर एक एस्टिमेशन नहीं होती कि इतने महीनों में ही होगा, कुछ भी हो सकता हम्म है, ठीक है। कोई चीज़ भी आ सकती अच्छा, है, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। एक और क्वेश्चन है कि लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ इसको कैसे करूं। मेरी जैसे यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है सुबह हम्म 8 से शाम 5, ठीक है। हम्म 5 बजे मैं घर आती हूँ। हम्म उसके बाद आके नमाज खाना शाना, और एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आया था, उसको पढ़ा के आप लेट्स को कह लें 7 बज जाते हैं, 7 7:30 8 बजा लें चले। हम्म तो इसके बाद फिर हम अब अपना फिर यूनिवर्सिटी का काम कब करें और ये वाला काम कब करें, क्योंकि मैंने ये जो सारा काम है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और जो मैंने टेलविंड CSS, और मैंने जो बूटस्ट्रैप कवर किया था, ये मैंने समर ब्रेक में कवर किया था, और समर हम्म ब्रेक में भी, और क्या कहते हैं जो मेरी सेमेस्टर ब्रेक थी हम्म उसमें। अब लाइक मेरे यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं, अब हमारे पास ना ही सेमेस्टर ब्रेक है इस टाइम और ना ही क्या कहते हैं समर ब्रेक है, तो फिर इसको यूनिवर्सिटी के साथ कैसे लेके चलें, यूनिवर्सिटी का भी पढ़ लें और ठीक इसको है यूनिवर्सिटी में इसको CGPA नहीं मैटर करता, बट स्टिल इसमें एटलीस्ट पास तो होना है ना मैनेज हमने। मैनेज इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग, देखिए आपका एक दिन का चीज़ें आप लोग कवर करें, टॉपिक यहाँ पे जो कवर करवाया जाएगा उसकी असाइनमेंट करें, ठीक है। जो आपको असाइनमेंट असाइन हम्म की जाएगी, जो टास्क होगा आप लोगों का, ठीक है। हम्म जिसका अगर यूनिवर्सिटी का कोई इशू है, ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर आप चीज़ें पहले से कर रहे हैं, कुछ की हुई हैं, तो उसको आपकी रिवाइज होंगी, उसको एक क्या कहते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आप करके देखें कि आपने पहले किस तरह की थी, अब किस तरह कर रहे हैं। बड़ा फ़र्क होता है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। ठीक है। पहले खुद से अगर की है तो वो किस तरह से की थी, अगर इस तरह इधर कर रहे हैं तो वो किस तरह कर रहे हैं, आपको खुद फ़र्क नज़र आता है उस चीज़ के अंदर। ये नहीं हाँ होता कि जी। आप लोग उस चीज़ को उस तरह से कहो कि मैंने पहले की हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, की हम्म हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर हम्म यूनिवर्सिटी के साथ उसको आपने मैनेज करना है तो आपको एटलीस्ट इसके लिए एक दिन के लिए 2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे कम अज़ कम, ठीक है। ठीक तो है। इसमें यह है कि आप इसको पूरे वीक के अंदर ऑलमोस्ट, अगर यूनिवर्सिटी के टाइम को भी निकाल लें, यूनिवर्सिटी का मसला भी है, तो उसको आप एटलीस्ट आपके पास क्या कहते हैं वीकली वो तो है ना, वीक। वीकेंड तो है ना आपके पास। अच्छा मेरी बात सुने, अब लेट्स सपोज मैं पूरा हफ्ता काम नहीं करती, वीकेंड पे बैठ के इसका काम कर लेती हूँ, तो ये भूल नहीं जाएगा बार बार, तो ये मुझे भी बार बार दोबारा एक रिवाइज चीज़ है, करना एक पड़ेगा। चीज़ और है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो आपको वीक में 2 दिन छुट्टियां नहीं होती। जी जी, वीकेंड में जो छुट्टी होती नहीं नहीं है। नहीं नहीं, आपको यूनिवर्सिटी 5 दिन बुलाती है। 4 दिन, फ्राइडे को भी ऑफ होता है। फ्राइडे को भी ऑफ होता है, ऐसे ही होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी पंजाब में थोड़ा स्केजुअल चेंज है ज़रा। तो उसमें ये है हम्म कि आप इसको अपने एक दिन का 2 घंटे दो, 1 घंटा दो, लेकिन इसको लाजमी दो। आप इसको वीक के एक एंड पे आके टास्क को उस तरह से करने बैठोगे, वो तो ज़ाहिर सी बात है, आपको बीच में माइंड से कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी, ठीक तो है। हम अगर इसको एक दिन में 2 घंटे भी देंगे तो फिर इनफ होगा। इनफ है,
जो आपने ठीक यहाँ है। पे किया है उसको बस करके जाओ, बर्डनाइजेशन नहीं है कोई किसी के ऊपर। ठीक है। ठीक है। जो चीज़ जिसको बताई गई है उस पर बर्डनाइजेशन नहीं है। वो ये चीज़ नहीं है कि आपने करनी है तो करनी है, उस पर ये है कि आप जस्ट थोड़ा सा अपने आप को कंसिस्टेंट रखो। कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा भी करते जाओगे, चीज़ें कवर हो जाएंगी। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमारे मिड फाइनल्स हों तो हम्म। फिर तब क्या करें, तब इसको कितना टाइम दें? क्योंकि मुझे वही मसला है कि मैं अगर छोड़ दूं तो मुझे फिर बार बार सारी चीजें दोबारा शुरू से रिवाइज करनी मिड पड़ती है, भूल मिड जाता सब। मिड और फाइनल्स के अंदर इसका इसको इस तरह से है कि साथ आप थोड़ा थोड़ा लेके चलो। मिड फाइनल्स आते हैं, उसमें थोड़ी देर इसको स्किप कर लो, थोड़ा सा देख लो कि जिस दिन मिड फाइनल में थोड़ी सी ब्रेक है उस दिन इसको कर लो। लेकिन ये है कि साथ साथ चीज़ों को हल्का हल्का फुल्का मैनेज करते रहा करो। मीन्स कि आपके पास वो टाइम ज़्यादा है, उसको टाइम ज़्यादा दे दो, उसको थोड़ा टाइम कम, टाइम मैनेज करना पड़ता है आपको। अगर आप इसको पहले दो। मिड फाइनल हमारे एक हफ्ते में हो जाते हैं, सिर्फ लगभग एक हफ्ता हमें लगता है, फ्राइडे टू फ्राइडे या मंडे टू मंडे। तो हम्म, हम क्या कहते हैं, अगर इसको हाफ एन आवर दे दें मिड फाइनल्स में तो वो ठीक होगा फिर? वो ठीक है, आप देख लें, आप पे डिपेंड करता है कि आप हाफ एन आवर या 1 घंटे में इसको किस तरह से कितना लेके चलती हैं साथ। ठीक है। तो मेनली ये ठीक चीज़ है। होती है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक। डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर। आपको मैं बता भी दूंगा किस तरह से क्या मैनेज करना। बाकी मैं चीज़ें आगे बताता हूँ और आगे इंशाल्लाह इसको लेके चलते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास देन वी हैव रिएक्ट जेएस। उसके पास हमारे पास हुक्स आ जाती हैं, राउटिंग आ जाती है। ठीक है। हुक्स क्या होती हैं? यूज़ स्टेट है, यूज़ इफ़ेक्ट है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, यूज़ रेफ है, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, ये सारी हुक्स हैं। ठीक है। और देन वी हैव रिडक्स टूल किट एज वेल, जो कि एक स्टोर होता है जो कि फ्रंट एंड के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। और फिर हमारे पास बैक एंड आ जाएगा। देन वी हैव पोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस, उसका सेटअप और उनकी हर चीज़ जो सी हम लोग एमवीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यूज़ करेंगे। एक चीज़ हमारे पास यूज़ होती है क्रड। क्रड बोलते हैं क्रिएट। जब आपको आपको कैसे पता लगेगा आपका एक पेज जो सा है या एक एप्लीकेशन का एक पेज कंप्लीट हो चुका है, या पेजेस कैसे कंप्लीट पता लगेंगे आपको? एक तो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पता लग जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये क्रड क्या चीज़ होती है? क्रड होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। हर पेज का क्रड होता है। ठीक है। आप लोग हर पेज को उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट अब कैसे चलता है? ये ऐसे चलता है कि आपने अगर फेसबुक है या कोई भी एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप रजिस्टर होने गए, यहाँ पे वहाँ पे आपने साइन इन किया, आपने अपने आप को वहाँ पे जाकर क्रिएट कर लिया, क्रिएट हो गया। अब आप अपने लॉगिन किया आपने, तो आप अपने फीड पे गए हैं, तो वहाँ पे अपने आप को आप रीड कर रहे हैं। फिर आपने कोई चीज़ अपडेशन की है, कोई भी चीज़ उसमें आपने लाइक अपनी पोस्ट को एडिट किया है, तो एडिट का मतलब अपडेट, और डिलीट का मतलब डिलीट। कोई भी चीज़ डिलीट करनी है, अपनी पोस्ट डिलीट करनी, कुछ भी करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिलीट। हमारे पास ये इसके जो से मेथड्स होते हैं कुछ, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के। क्रिएट के लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट का मेथड। ठीक है। पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट, ये प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ें, ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं फ्रंट एंड के ऊपर इन इसका डाटा जो सा है उसको करने के लिए, या बैक एंड के ऊपर इस डाटा को इस तरह से करने के लिए। पोस्ट होता है भेजना। ठीक है। लॉग इन लॉग आउट के लिए पोस्ट यूज़ होता है। ठीक है। और जो आपका होता है पुट या पैच एडिट के लिए। ठीक है। और दूसरा होता है आपका सॉरी एडिट के लिए पुट पैच, और जो सा है डिलीट के लिए डिलीट यूज़ होता है। पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एपीज आ जाती हैं गेट ऑल की। ऑल यूज़र गेट करने हैं, वो किस तरह से गेट करने हैं वो डिफरेंट एक एपीआई से अदर अदर एपीआईज को हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, और सारी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होती है। इफ़ एल्स कंडीशंस उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। और हमारे कुछ चीज़ें होती हैं लाइक आपने देखा होगा हमारी रिक्वेस्ट्स होती हैं स्टेटस रिक्वेस्ट। लाइक हमारे पास होती है 404 बैड रिक्वेस्ट, उसके बाद 200 की एक रिक्वेस्ट होती है जो उसका मतलब होता है सक्सेसफुल। 404 का आपने देखा कभी एरर आता है वेबसाइट्स के ऊपर, आप लोग उसको ओपन करते हो कहता है 404 बैड रिक्वेस्ट, तो वो हमारे बैकएंड में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि लास्ट वीक के अंदर हम लोग आएंगे अपने एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि इन चीज़ों को, इन टास्क को कवर करने के बाद होगा। ये मैं ग्रुप में ऑलरेडी भी शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। कुछ न्यू ज्वाइनीज़ हैं तो उनको भी इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से इसको हम लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग मुझे सब स्टूडेंट जो से हैं मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप लोगों के जो सी प्लस प्लस और ऊप के कॉन्सेप्ट हैं, मुझे जस्ट वो स्टूडेंट बताएं पहले कि जिनको 100% सी प्लस प्लस और ओप क्लियर है, वो जस्ट अपना हैंड रेज करें। अब वो स्टूडेंट हैंड रेज करें जिनको सी प्लस प्लस ऊप जो सी है वो। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हो गए। अब वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करें जिनका जिनको लाइक 70% पता है सी प्लस प्लस ऊप आती है, 70%। ठीक है।
ओके, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनको 70% आती है, 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है जिनको 100% आती है। वी हैव 7 स्टूडेंट्स। ओके, सी प्लस प्लस थोड़ी सी एडवांस है सी से, ठीक है। उसको जस्ट आपको एक दफ़ा रीड आउट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा वो आ जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स बताएं कि जिनको 50% आती है। ठीक है। और वो स्टूडेंट्स अब हाथ खड़ा करेंगे जिनको बिल्कुल नहीं आती। ओके, बस सेम आई नो जू बट इन जावा। ओके, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स का अपना हैंड रेस करें कि जिनको बिल्कुल ही नहीं पता सी प्लस प्लस और ऊप का। ओके, सो आई डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, just one by one. Okay, so firstly tell me, Malaika, you should tell me what are the data types. Malaika, what are the data types? Name them, please. Okay, I think you have internet issue. So, Amna Noor, please tell me that what are the data types? सर डाटा टाइप्स में हमारे पास इंट फ्लोट डबल करेक्टर स्ट्रिंग बूल ये आती हैं। Okay, next question is from Rumaisa. Rumaisa, are you hearing me? Rumaisa, are you hearing me? Yes, sir. Okay, just a minute. Rumaisa, you just tell me about mm, enums. What are the enums in the C++? सर इनमें हमारे पास सेट ऑफ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। हम्म, जैसे हम कोई कलर फिक्स कर देते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम्म, तो हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया। इनम्स, ठीक, बिल्कुल ठीक बताया। इनम्स का बेसिकली ये होता है कि हम लोग इसको एज अ बैकएंड पे ही यूज़ करते हैं। बैकएंड के अंदर इसको हम कहते हैं लाइक हमारे पास जैसे एक एप्लीकेशन के अंदर या स्टूडेंट पोर्टल्स के अंदर कुछ रोल्स होते हैं। लाइक वी हैव द रोल ऑफ एडमिन, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, या कोई भी रोल होता है तो वो एज अ इनम यूज़ हो रहे होते हैं जो कि नॉन चेंजेबल होते हैं, जिसको हम एक दफ़ा ही वहाँ पे कर देते हैं डिक्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मरियम मिनाहिल। Maryam Minahil, please tell me that what are the pointers? सर जो एड्रेस स्टोर करते हैं हमारे वेरिएबल्स का जो हमको पास करते हैं बाय रेफरेंस, तो एड्रेस जो बेसिकली मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं वो ठीक पॉइंटर्स। होगा। Okay, okay, understand. So my next question is from Ifra Imran. Ifra, please tell me that why are we using the while loop, and in which conditions it run? Please tell me.
इफ़रा इमरान। वाइल लूप आपका तभी काम करता है जब तक कंडीशन ट्रू हो या जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है ओके तो लूप करना रुक जाता है। ओके ओके। सो my next question is from Javeria Latif. What are the references in the C++? Javeria Latif. What are the references in the C++? Okay. Next question is from Alishba Riaz. Alishba, please tell me that what is function overloading? सर मैंने अभी जब आपने बोला था सी प्लस प्लस तो तभी रीड किया था, तो मुझे स्टार्ट वाले ही कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं यस आपको एंड सर जी मुझे जी, ऊप का कोई आइडिया भी नहीं है। कोई मसला नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले आज स्टार्ट करवाई जाएगी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के कुछ टॉपिक्स हैं वो आया मैं आपको दूंगा। आप लोगों ने उसको जस्ट रीड आउट नहीं करना, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं बताऊँगा किस तरह से क्या करना है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन मेरा है सालिया सादिक से। Yes, sir. Salia, my question is from you is that what is function overloading in C++? Sir, function overloading mean that to define the same variable with different names. Okay, okay, ठीक है। Like when you use multiple functions and each function does any different sort of task, but the functions are with the same name. Okay, okay, good. So my next question is from Aliza Shahid. Aliza, please tell me that what is recursion? सर मुझे भूल गया ये। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली होता है कि जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है जब तक उसकी सर डिफरेंट क्लासेस में फंक्शन सेम मतलब फंक्शन चल रहा होता है। रिकर्जन ये होती है, रिकर्सिव फंक्शन ये चीज़ होती है कि जो फंक्शन अपने आप को बार बार रिकॉल करे बार बार जब तक उसकी एंड कंडीशन ना आ जाए। मींस के आप कह सकते हैं ये कैसे रन करता है, इसकी बेस कंडीशन क्या होती है? एनी आइडिया अबाउट दिस बेस कंडीशन? कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसकी बेस कंडीशन ये होती है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इंटू n-1। ओके, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल कैसे लेते हैं हम किसी नंबर का? सर फैक्टोरियल नंबर्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जैसे हमारे पास 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वहाँ पर जाकर ये एंड हो जाएगा कॉल कर करके, क्योंकि ये इसको इस तरह से हम इसकी चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से होती है। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं कुछ टॉपिक्स आगे बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट ये है कि जो स्टार्टिंग में आप लोगों थोड़ी सी ये चीज़ को आप लोगों ने करना है थोड़ा सा, कि जो आपके टॉपिक्स हैं ना उनको आपने यूट्यूब से कवर नहीं करना। डोंट गो टूवर्ड्स द यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब से थोड़ा सा भी आपने साइड पे रहना है। मैं आपको जो टॉपिक्स बताऊंगा, जो जगह बताऊंगा, आपने वहाँ से करने हैं। और इसको आपको देने का मकसद ये है कि आप लोग पहले इसको खुद से एक दफ़ा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो आपके इश्यूज़ हो गए उनको रिजॉल्व किया जाएगा, और जो आपके चीज़ें आपने कर ली होंगी उस पर आपका एक टेस्ट होगा जो असाइनमेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम ऊप की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम चीज़ को लेके चलेंगे, और हमने इंशाल्लाह ये एक 1.5 वीक के अंदर ही चीज़ें कवर करनी है अपनी, ये दोनों चीज़ें। इन पे हमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे, बट अगर हम लोग इस पर टाइम नहीं लगाएंगे तो हमारी जावास्क्रिप्ट उस तरह से अच्छी लर्न नहीं होगी, ठीक है।
तो बेसिकली टाइम लगवाने का इस पर मकसद ये है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमारी आगे जो HTML CSS है उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को। जस्ट आप कह लें कि मैक्सिमम 1 वीक बहुत काफ़ी है इसके लिए अगर देखा जाए तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि टॉपिक्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लास्ट टाइम बल्कि मैंने टॉपिक्स आपको शेयर किए थे, जो लास्ट क्लास नहीं हुई थी उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से क्लास पोस्टपोन हो गई थी। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी मैंने आपको जो कही थी, जो टॉपिक्स जी कहे थे, सर देखी है, लेकिन वो टॉपिक्स ज्यादा थे, सारे कवर नहीं हुए, ठीक लास्ट है। फंक्शंस वाला ठीक रहता है, है। अब आपके पास डेज़ हैं, अब आपने उसको उस तरह से नहीं करना, अब आपके पास डेज़ हैं, मैंने आपको चीज़ बता दी आज। आपके पास अब डेज़ हैं, आज आज हो गया आपके पास वेडनेसडे है, यू हैव थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4-5 दिन है। अगर इसमें दोनों चीज़ें कवर करना चाहें तो की जा सकती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लाइक वी हैव डाटा टाइप्स हैं। आपने बेसिकली जो फोकस करना है, आपने जो बेसिकली टॉपिक्स पर फोकस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो C++ जस्ट अभी करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, C++ को कवर करें, ठीक है। उसमें बेसिक टॉपिक्स जो से उसके आ जाते हैं, वो आपके वेरिएबल्स हैं, यूज़र इनपुट्स हैं, डेटा टाइप्स है। ये दोबारा सेंड भी कर दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सेंड भी कर दूंगा। उसके बाद डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, बुलियंस हैं हमारे पास, इफ एल्स कंडीशंस हैं, स्विच है, वाइल लूप है, फॉर लूप है, ब्रेक कंटिन्यू कंडीशन है, अरेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इनम्स हैं, रेफरेंसेस हैं, पॉइंटर्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट है, फंक्शंस हैं, फंक्शन पैरामीटर्स है, फंक्शन ओवरलोडिंग, स्कोप, रिकरियन और लैम्डा, ठीक है। ये चीज़ें जो सी हैं आपने यहाँ तक कवर करनी है थ्रू आउट द मंडे। आपने ये कॉन्सेप्ट, अब ये करने किस तरह मैं बता देता हूँ आपको। ये चीज़ इस तरह से है कि ये आपने करनी पहले ख़ुद से है, एक दफ़ा इसको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करनी है, इसको पढ़ना नहीं है। ये पहले इस देने का मकसद ये है कि आप इसको थोड़ा सा इस पर R&D करो, थोड़ा इसको रिसर्च आउट करो, थोड़ा इस पर काम करो, ठीक है। जो नेक्स्ट आपके जो इश्यूज़ होंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर रिजॉल्व किए जाएंगे, इसके ऊपर उसको प्रैक्टिकली आपको करके बताया जाएगा कि ये चीज़ जो सी है इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंडीशन में इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 डेज़ हैं, तो 4 डेज़ आर इनफ फॉर दैट, ठीक है। ये टॉपिक्स जो से हैं उसमें कुछ टॉपिक्स जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन होते हैं, बाकी जो उनसे आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपको जो आपको बताए हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थ्रू आउट द लैम्डा इन द C++। अभी जस्ट C++ करनी है, ऊप इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने कवर करनी है और ये करवाने का मकसद ये है कि आपकी एक बेस स्ट्रॉन्ग हो, ना कि आप लोग उस पर फोकस ना करें। आपने इस चीज़ पर फोकस करना है और इसमें जो क्वेश्चन आंसरिंग, अगर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो मैं उससे क्वेश्चन करूँगा, और जो असाइनमेंट जो मैं दूंगा इसके ऊपर, वो असाइनमेंट जो सी है मैं किसी भी स्टूडेंट को जब करवा लूँगा तो मैं किसी भी स्टूडेंट को कहूँगा, अगर किसी ने क्वेश्चन ना किया तो मैं किसी भी स्टूडेंट को कह सकता हूँ कि अपनी असाइनमेंट आप ओपन करें और मुझे बताएं कि आपने किया कैसे है ये, ठीक है। तो बेसिकली इसको इस तरह से आप लोगों ने लेकर चलना है, ठीक है। और जो चीज़ें हैं उसको आपने थ्रू आउट द कवर करना है। क्वेश्चन है तो आपने पूछना है, उसमें डरने वाली बात नहीं है। मैं उसके रिलेटेड आपको हर चीज़ बताऊंगा, आपको रेफरेंसेस चाहिए, आपको हर चीज़ चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे अगर एक चीज़ करने आए ना तो इसको आपने अवेल करना है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आपको अगर मैं कोई आपको मेरी जगह कोई और भी हो या कोई ऐसा कोई आपको प्रोफेसर और भी कोई चीज़ तरह से पढ़ाए, कोई और टॉप लेवल का भी बंदा आ जाएगा, जब तक आप अपने आप के साथ खुद से के साथ सीरियस नहीं ना, तो आप वहाँ पे भी वो स्टूडेंट वो कुछ नहीं कर सकता। तो मेनली बात समझाने का मकसद ये है आपको, ठीक है। तो चीज़ को आपने लेकर चलना है, जो चीज़ समझ नहीं आती वो आपने पूछना है, ठीक है। मेन चीज़ ये है, जितना पूछेंगे उतना आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। तो टॉपिक्स मैं भी दोबारा शेयर कर देता हूँ आपको ग्रुप के अंदर। अभी तक किसी का क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बताएं, मैं उसको कन्फ्यूजन को और क्वेश्चन को रिजॉल्व करता हूँ। प्लीज़ टेल मी इफ़ एनी वन हैव एनी कन्फ्यूजन टिल नाउ। नो सर। anyone please tell me if anyone have confusion. yes सर हमने इन कंसेप्ट्स को जब हम लोगों ने सीख लेना तो उसके बाद हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं जहाँ से आपने इसको करना है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं, एक तो आपका आ जाता है W3 स्कूल्स, दूसरा आपका आ जाता है फ्री कोड कैम्प। ये 2 आपके पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपने इसको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी होती हैं आपको ऑलरेडी,
ठीक है। अब यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं, ये आपने स्टार्ट किया एक एग्जांपल देने लगा, डेटा टाइप से स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपके पास की ट्राई टू सेल्फ एग्जांपल भी है, ये एक कंपाइलर है। अगर इस कंपाइलर पे नहीं करना चाह रहे, यू शुड मूव टूवर्ड्स द डेव C++ ऑनलाइन कंपाइलर। यू हैव प्रोग्रामिंग कंपाइलर हेयर, यहाँ पे इसको ओपन करें और इसके ऊपर अपना कोड करें, यहाँ से चीज़ें करें। और जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी वो भी आपकी क्वेश्चनिंग फॉर्म में होगी, और वो क्वेश्चन जो उनसे आपने करके PDF फॉर्म में सबमिट करवाने होंगे। 12 क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू C++। ठीक है जी। अब क्वेश्चन किसका, किंजा जी? वालेकुम सलाम। सर जो हमने जो डेटाबेस करनी है वो हमने मोंगोज नहीं करनी है इसके अंदर। नहीं, MongoDB नहीं करेंगे इसमें। MongoDB जो सी है वो क्यों नहीं करनी, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। MongoDB बेसिकली आप कह सकते हैं, MongoDB आपको ओवरव्यू दे दूंगा मैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि MongoDB हमारे बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। हमारे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल लेवल या इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग उसमें ज़्यादातर SQL और PostgreSQL ही यूज़ करते हैं, क्योंकि SQL के अंदर डाटा, MongoDB जो सी है वो नॉन रिलेशनल डाटाबेस है, और जो सी आपकी है ना ये PostgreSQL या SQL, ये एक आपके कह लो कि रिलेशनल डाटाबेस है, और उसमें टेबल एंड रोज़ की फॉर्म में डाटा होता है, जो कि स्कीमाज विद टेबल एंड रोज़ की फॉर्म में वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। उसके API के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसमें 1 to many और many to many के रिलेशन बनते हैं PostgreSQL के अंदर। MongoDB इसलिए फेल है क्योंकि उसके अंदर आपका अगर लाखों की तादाद में यूज़र्स का डाटा आ जाए, वहाँ पे वो उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाता, उसमें क्यूरीज बहुत चलानी पड़ती हैं आपको। इसमें क्यूरीज नहीं है, ठीक है। इसमें खुद ब खुद वो उसको टेबल एंड रोज़ की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक हो गया जी सर। तो अगर हमने अपनी CV पे इसके बारे में लिखना है तो फिर हम इसको मर्ज नहीं लिखेंगे, हम जैसे अब आपने आपने स्टेटस पे इसको लगाया हुआ था। इसको हम मर्न के अंदर MongoDB आपको करवाएंगे। MongoDB भी आप मर्न भी लिखेंगे और पर्न भी लिखेंगे, ठीक है। मर्न एंड पर्न स्टैक, ठीक हो गया, दोनों चीज़ें आएंगी। ओके सर। जस्ट डेटाबेस का डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है। जस्ट डेटाबेस का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, सच है। डेटाबेस का डिफरेंस आ जाता है, उसमें कुछ क्यूरीज का डिफरेंस आ जाता है। MongoDB में क्यूरीज काफ़ी चलानी पड़ती हैं आपको, वहाँ पे रिलेशन खुद बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे होते नहीं हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है। PostgreSQL में आपकी बन जाती हैं खुद ब खुद से, जो अब आपने एक उसमें देनी है लाइन फंक्शन या उसमें लिखना है, वो आपकी सारी खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा। सर हम ओरेकल भी यूज कर सकते हैं? ओरेकल तो नहीं ऐसा हम यूज़ करेंगे फ़िलहाल इसके अंदर, ठीक है। तो और सर हमारी जो असाइनमेंट्स होंगी उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे पास कोड आएंगे C++ के लिखने के लिए, उसमें हम ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं? नहीं, ChatGPT फ़िलहाल यूज़ नहीं करना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ChatGPT यूज़ नहीं करना, ठीक है। मेनली कोशिश करनी है ओके पहले खुद से करने की कोशिश करनी। ChatGPT यूज़ करवाना फिर आपको करने का फ़ायदा, फिर तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? सर जी सर टॉपिक्स और असाइनमेंट के बारे में एक बार फिर से बता देंगे? ठीक है। टॉपिक्स जो से ये टॉपिक्स आपने लैम्ब्डा तक कवर करने, टॉपिक्स मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट्स आई थिंक मैंने पहले भी सेंड किए थे, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। आपने टॉपिक्स कवर करने हैं, इसको आपने कवर करना है। मैं आपको इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा, या उससे पहले किसी को क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उनको देख लेंगे, इनको रिजॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को जो उसके हवाले से चीज़ें हैं ना, असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट सेंड कर दूँगा। 12 क्वेश्चन होंगे, PDF फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, उसके जो फंक्शंस होंगे उनको बना के उसी PDF फॉर्म में आपने पेस्ट करना है और वो आपने सबमिट कर देना स्लैक के ऊपर, या व्हाट्सएप पे आप बेशक सेंड कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और उसके अलावा कोई चीज़ समझ ना आए, टॉपिक्स देने का मकसद ये है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने पूछनी है, मेन मकसद ये है। ChatGPT नहीं यूज़ करना उसमें, वो इसीलिए यूज़ नहीं करना है। अगर ChatGPT से ही करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं, मेरा फिर करने का फ़ायदा को नहीं, ठीक है। तो ChatGPT फ़िलहाल यूज़ नहीं करनी। ChatGPT हर कोई यूज़ करता है, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करनी। स्टार्टिंग में आपका सारा वो चीज़ें उस तरह से ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जो सी ना सोचने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाते आप लोग फिर। तो इस तरह से स्टार्ट में इसको इस तरह से लेके चलना है। बाकी ये मैं आपको कोशिश करूँगा जो असाइनमेंट है वो मैं सैटरडे या संडे तक आपको साइन कर दूँ, बल्कि उससे पहले ही साइन कर दूँगा ताकि आप लोग उसको कवर कर लो। और अगर बल्कि मंडे को ही करूँगा साइन आपको, आप पहले इन चीज़ों को कवर करें अपना सारा टोटली,
ठीक है। C++ लैम्डा तक कवर करनी है, देन उसके बाद उसकी असाइनमेंट होगी, फिर हम ऊप के ऊपर आएंगे। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? सर जो आपने असाइनमेंट देनी है वो W3 स्कूल से इम्प्लीमेंट करके देनी है? वो क्वेश्चन इसके अंदर से ही होंगे, ये टॉपिक्स दिए हैं इसी के अंदर क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है। लूप्स के क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट आपके चीज़ों को बिल्ड करने के क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर एक क्वेश्चन होगा आपका, उसमें उसको आपने फंक्शंस लिखने होंगे उसके। ठीक है। ठीक है, फिर मैं आपको टॉपिक शेयर करता हूँ, आप उस पर काम स्टार्ट करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल मंडे आप मुझे पूछ सकते हैं, और मंडे को आपसे अगर क्वेश्चन आपने ना पूछा मंडे की क्लास में तो क्वेश्चन फिर मैं करूँगा आपसे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं करता तो उसका मतलब होता है उसको सारा कुछ आता है। ठीक है। तो आपने चीज़ें पूछनी है, अपने जो उनसे मसले मसाइल हैं उनको दूर करना है, तो मेन चीज़ ये है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम करते हैं और आगे इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। आप लोग सब लेफ़्ट कर लें, और सालिया आप यहाँ पे आप लीव ना करिएगा, बाकी आप लेफ़्ट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे होती है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हेलो, यस सर। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर। अच्छा, इस तरह से अभी ना फ़िलहाल तो आपका जो चीज़ें हैं ना, आपने ऑलमोस्ट ये चीज़ें कवर की हुई हैं पहले। ठीक है। जी जी तो सर, क्यों ये बस ठीक मैं एक बार रिवाइज कर बस लूंगी ठीक है, इसमें ये है कि कि आपका दोबारा सब कुछ। फ्रंट एंड का आपका मुझे जितना बताया ना, आपको जितना फिजिबल है क्लास का टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा 2 बैचेस अब इकट्ठे चल रहे हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। ठीक है। तो वो चीज़ें हम साथ लेके ओके चल रहे हैं, इकट्ठी लेके चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि उसको थोड़ा सा एक की टाइमिंग 8 to 9 है, एक की 9 to 10 है। ठीक है। अभी 9 बजे एक और क्लास है। ठीक है। वो भी मंथ स्टैक वालों की ही है। तो उसमें ये है कि जो चीज़ें ना आपकी उसी हिसाब से मैं कवर करवाता जाऊँगा। मुझे आप बताना जिस तरह आपको लगे ना कि मैंने ये चीज़ की हुई है तो मुझे आगे थोड़ी सी जानने की ज़रूरत है, मुझे बता देना, मैं आपको वहाँ से लेके आगे करवा दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। ओके सर, ठीक ठीक है। है, कोई ऐसा ओके मसला नहीं, आप मुझे बता देना कि इसको इस तरह से नहीं, मैं इस तरह से करूँगी। आपने असाइनमेंट्स मैं आई थिंक पहले भी की हुई है, वाली की हुई ना आपने असाइनमेंट्स? जी जी सर, की हुई हाँ है, बस मैंने ठीक ये हो सब गया। किया हुआ है। बस ठीक है। आगे ये है कि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, और आगे फिर हम लोग डेटाबेस की तरफ जब आते हैं ना, मैं आपको डेटाबेस की तरफ कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी शिफ्ट करूँ। ठीक हो गया। और फ्रंट एंड के अंदर जी बल्कि जी। बल्कि फ्रंट एंड में ना फिर रिडक्स टूल किट आएगी, पहले वो इंप्लीमेंट करना एक दफ़ा सीख लो, फिर हम लोग उसको आगे उस चीज़ पे करेंगे। ठीक हो गया। ओके सर, ठीक ठीक है, है। बाकी कोई मसला हो तो आप बता देना मुझे। जी ओके ठीक हो सर। गया। ओके, अल्लाह तो सर हाफिज़। जो 9 से 10 वाली जो क्लास है वो जी, भी सेम ही है, मतलब कि उसमें उसमें नहीं भी नहीं आप नहीं, वो सेम। सेम नहीं है, वो आप लोगों वाला बैच है, उसके अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट के ऊपर आ गए हुए हैं, जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है उस पर। ओके ठीक ओके है, सर, वो ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे हम आ गए हुए हैं, वो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, और उसके कुछ चीज़ें हो गई हैं। जब उसके बल्कि उसके अंदर जब आती है ना, उसमें भी आपको मैं ऐड कर देता हूँ वैसे। ठीक है। उसमें ये होगा कि जब हमारी शुरू होगी ना ये रिडक्स टूलकिट या रिएक्ट शुरू होगी, आपको तब मैं उसके ऊपर भी करवाऊंगा साथ साथ चीज़ें, वो जैसे आपको जी ठीक। फिजिबल लगेगा आप बता देना मुझे, वो वैसे चीज़ें हम कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, ठीक। बिकॉज सर जावास्क्रिप्ट वगैरह और ये जैसे कोई वो है ना, टेलविंड वगैरह, ये सब तो मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है बस पहले ठीक है, भी। ठीक हो गया। उसमें अगर रिएक्ट के ऊपर आपका थोड़ी सी ग्रिप करवाएंगे, रिएक्ट के अंदर ना रिडक्स टूल किट के ऊपर मेनली चीज़ वो करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि उसका ही जी बैकएंड के जी साथ मेन ठीक है सर। कंसर्न होता है, उस पर आपने ज़्यादा काम करना है। ठीक हो गया। ओके। बाकी ये है कि आपकी जी सारी सर। रिवीजन चलती जाएगी साथ साथ, और बाकी चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी आपकी। ओके सर, ठीक ओके हो गया। ठीक है। बाकी कोई मसला हो तो आप बता देना मुझे, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे जी उसको। सर, जरूर। ठीक है, ओके, ओके अल्लाह ओके, हाफिज़। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।